ਲੈਟਸ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਫॉर यूनिफॉर्म ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਆਇਆ ਸੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਖਣੀ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ऑब्जेक्ट है जी वो अगर यूनीफॉर्म वैलोसिटी नाल मूव कर रही है तो उस केस च अपने कोल आपां उहदी इंपॉर्टेंस की है, आपां ग्राफ की हेल्प नाल की कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंस देखनी है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ वैलोसिटी टाइम ग्राफ वो की है। आपां ग्राफ देखिया कि अपने कोल ग्राफ की आया सी जदों कोई बॉडी जी यूनीफॉर्म वैलोसिटी नाल मूव कर रही है पैरलल टू एक्स एक्सिस, राइट। तो आपां उवें ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਜ਼ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਦੇਖੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਔਰ ਟਾਈਮ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀ ਆਊਗੀ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਊਗਾ। ਮੀਨਸ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਅਗਰ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਸਪੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ। ਸਪੋਜ਼ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ 20 to 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ 20 to 30 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵਾਲੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਏ ਪਹਿਲੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਬਣੂਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੇਪ। ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸਪੋਜ਼ ABCD। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਗਰ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਿਲ ਬੀ ਏਰੀਆ। ਤਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਵਿਲ ਬੀ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ that particular interval of time, particular interval of time। ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜਾ VT ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਮੀਨਸ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦਿਸ ਗ੍ਰਾਫ, ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ VT graph we can calculate displacement, okay। एंड डिसप्लेसमेंट होगी कि डिसप्लेसमेंट एरिया होगी, जो भी इंटरवल है ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰग वो पॉइंट्स मार्क कर ले, ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿंग फिर वेलोसिटी वाले पॉइंट्स मार्क करो, जो शेप बनूगी ਉਹਦਾ जस्ट एरिया कैलकुलेट कर दो ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ डिसप्लेसमेंट। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ। ਤਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਮਤਲਬ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏਰੀਆ ਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ। ਹੁਣ ਲੈਂਥ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਵਾਲੀ ਹੈ AD ਜਾਂ BC ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ AD ਰਾਈਟ ਕਰਤਾ ਪਲੱਸ ਬ੍ਰੈਡਥ AB ਜਾਂ CD AB। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 20
तो लेंथ कितनी है इत्थे 20 इंटू जो अपनी ब्रैड्थ है, ब्रैड्थ एक्चुअली च की है टाइम इंटरवल, तो 30 माइनस 20, 30 माइनस 20 मीनस 20 इंटू 30 माइनस 20 10 विच इज़ इक्वल टू 200। तो ये एक्चुअली च की आ गया अपनी डिसप्लेसमेंट, डिसप्लेसमेंट है तो डिसप्लेसमेंट के यूनिट की होंगे, इतने किलोमीटर च आ रहा है तो जस्ट किलोमीटर राइट करोगे। तो यदा मतलब विद द हैल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप की कैलकुलेट कर लिया डिसप्लेसमेंट। तो जस्ट आपू अगर कोई ग्राफ देता और ये बोलिया कि ग्राफ की हैल्प, ये ग्राफ यूनीफॉर्म वेलोसिटी के केस अगर कोई बॉडी यूनीफॉर्म वेलोसिटी नाल मूव करती है तो वो जो ग्राफ बनता है वो तो डिसप्लेसमेंट कैलकुलेट करो। तो तुहानूं पहले ये पता होना चाहिए कि यूनीफॉर्म वेलोसिटी के केस जो अपना ग्राफ बनता है दैट इज़ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो कि आप ऑलरेडी डिस्कस किया है। फिर जो भी टाइम इंटरवल जो उन्होंने बोलिया है, अगर उन्होंने 10 to 40 के लिए फाइंड करने को क्या होंगे तो आप आ वाले पॉइंट मार्क करने सी, उहदे कोरस्पोंडिंग जो शेप बनी सी उहदा एरिया कैलकुलेट कर देना सी, तो वो बन जानी सी डिसप्लेसमेंट। अगर मान लो टोटल जिन्नी भी डिसप्लेसमेंट टोटल जिन्नी भी उन्हें सपोज आप टोटल डिसप्लेसमेंट कैलकुलेट करने को क्या है तो तुसी 0 तो लैके 50 वाला पॉइंट मार्क कर देना सी, तो सारे रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर देना सी। ओके नाउ नेक्स्ट हुण ये आप एरिया कैलकुलेट करके किवें कहता कि डिसप्लेसमेंट आ गई, उहदे लिए आप एक जनरल करते हैं। अपने कोल आपां की कीता, मान लो उवें इधर अपने कोल टाइम है और इधर अपने कोल की है वेलोसिटी है। तो आपां की कीता जिवें आपां इत्थे पॉइंट्स लै रहे सी ना वैल्यूज़ कि 10 मिनट्स 20 30 40 50, जनरल का मतलब कि आप वैसे ही लै रहे हैं T1 T2 T3 T4 T5 एंड हेयर वेलोसिटी इत्थे आप लै रहे सी ना कि बॉडी जिहड़ी है कितनी वेलोसिटी नाल मूव कर रही सी 20 किलोमीटर पर आवर दे नाल, कि 10 मिनट्स बाद भी 20 किलोमीटर पर आवर दे नाल 30 जो कि आप ऑलरेडी डिस्कस किया है जो आप ग्राफ बनाया सी। तो आप इत्थे कोई V वैल्यू लै ली कि जनरल का मतलब कि कोई भी वैल्यू हो सकती है T1 T2 T3 कोई भी, और V वेलोसिटी नाल मूव कर रही है 20 किलोमीटर पर आवर दे नाल, जस्ट जनरल मतलब वैसे। तो ये ग्राफ तो अपना ही बनूगा। हुण आप उवें मान लो आप T2 तो T3 दे विच फाइंड करना है तो उवें सेम प्रोसीजर आप 2 पॉइंट मार्क करांगे, उहदे कोरस्पोंडिंग वेलोसिटी वाले पॉइंट मार्क करांगे तो उत्थों एक एरिया बनूगा, दैट एरिया विल बी ABC सॉरी एक फिगर बनूगी शेप वो जिवें एक रिक्टेंगल बन गई। हुण आप एरिया राइट जो निकालीए एरिया वही चीज़ लेंथ इंटू ब्रैड्थ, लेंथ मतलब आह वाली कोई भी AD राइट किया सेम एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड हेयर CD या DC कुछ भी राइट कर सकते हो। लेंथ तो आ कितनी है अपने को 0 to V है ना, V माइनस 0 मतलब V इंटू आ की चीज़ है टाइम इंटरवल दैट इज़ T3 माइनस T2। एक्चुअली अगर आप देखिए आ की V का मतलब की है इत्थे वेलोसिटी, आ की चीज़ है टाइम। वेलोसिटी इंटू टाइम तो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वेलोसिटी इंटू टाइम की होंदा है डिसप्लेसमेंट, तो वेलोसिटी इंटू टाइम डिसप्लेसमेंट। तो ये फॉर्मूला इस तो बनया कि मतलब एक्चुअली जो आप एरिया कैलकुलेट करते हैं ना किसी ग्राफ का किसी शेप का अंडर मतलब यूनीफॉर्म वेलोसिटी वाले केस तो वो एक्चुअली जो वेलोसिटी नूं ही आप टाइम नाल मल्टीप्लाई कर रहे हैं तां ही वो डिसप्लेसमेंट दे रहा है। तो ये इत्थों बनया, ये सिर्फ जनरल केस है समझने के लिए कि एरिया तो आप किवें कहता कि डिसप्लेसमेंट आ गई। तो आप की डिस्कस किया तो मेन अपने को पहले आप ग्राफ बनाया सी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जोड़ा यूनीफॉर्म वेलोसिटी के केस के विच एक स्ट्रेट लाइन आंदा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फिर इस ग्राफ की आप इंपॉर्टेंस करनी सी, इंपॉर्टेंस की सी कि अगर अपने को किसी ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट यूनीफॉर्म वेलोसिटी नाल मूव कर रही है और आपको ये कहा गया कि किसी टाइम इंटरवल दे विच कितनी डिसप्लेसमेंट हो रही है। तो इंपॉर्टेंस की है ग्राफ की हेल्प नाल आप की है डिसप्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। किवें कैलकुलेट कर सकते हैं, जस्ट जो भी इंटरवल च आपको फाइंड आउट करने को क्या वो पॉइंट मार्क करो, वो कोरस्पोंडिंग वेलोसिटी वाले पॉइंट मार्क करो, जो शेप बनूगी वो एरिया कैलकुलेट कर लो, वही एरिया वो डिसप्लेसमेंट दसूगा। दैट्स इट। ओके
and I hope this is clear. So that's it.